Yes, a very pleasant good morning, dear students. So today I'm going to teach you noun, its types, and error based on nouns. So before we proceed, let me define what does noun mean. Noun is a name of a person, place, or thing. That is called as noun. In short, if I tell you all naming words are noun, whatever exists in this world has a specific name that called be as a noun. Suppose I I am Anil. So my name is Anil. Anil is a noun, right? It's a laptop. Laptop is a device. It's also a noun. So whatever exists in this world has a specific name that is called as noun. So in short, if I say my dear student कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका एक नाम है और उन्हीं सभी चीजों को हम क्या बोल सकते हैं नाउन्स बोल सकते हैं राइट Nouns can be classified into five categories. One is proper noun, number two is common noun, number three is collective noun, number four is material noun, and number five is abstract noun. So these are the five types of nouns, right? So we are going to study these five nouns are in detail, and I will also teach you the error based on these five type of nouns. So before that, I start explaining this particular topic to you. Please give me 1 second and let me share a PPT with you so that you can understand this topic very well, right? So give me 1 second. I hope this screen is visible to you, my dear student. Now, please just have a look of this PPT and let me define first the definition of a noun. As I told you, my dear student, a noun is a word that names a place, person or thing. नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या थिंग को बोल सकते हैं या कोई आइडिया होता है या कोई फीलिंग होती है या कोई क्वालिटी होती है उसको हम नाउन बोल सकते हैं राइट So as I told you, my dear student, noun can be classified into five categories. And the very first type of noun is proper noun. As I told you, every particular thing, whatever exists in this world, has a specific name. So that is called as proper noun. हर एक चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसका एक पर्टिकुलर नेम है तो उसी पर्टिकुलर नेम को उसी स्पेसिफिक नेम को हम proper noun कह सकते हैं राइट सो दिस इज कॉल्ड एज proper noun सपोज कृष्णा सो ही इज अ बॉय राइट बॉय तो कॉमन नाउन हो गया लेकिन उस लड़के का नाम क्या है कृष्णा सो कृष्णा इज अ स्पेसिफिक नेम इफ आई जस्ट से बाइबल्स I read books. I read books. So books is a common noun. But what should of books or what is the name of that book I read? Bible. So Bible is a specific name. I live in city. So I live in a city. City is a common noun. But what city do I live in? Delhi. So whenever you refer to a specific name, place or thing, that time we call it as a proper noun. इसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन बोलते हैं नाउ सेकंड टाइप ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन कॉमन नाउन इज नाउन that refers to a common name of a person, thing, or place. So that could be called as common noun. अब ऑब्वियस सी बात है अगर मैं बोलूं गर्ल तो गर्ल कॉमन है राइट लेकिन गर्ल को अगर मैं बोलूं सीता तो सीता स्पेसिफिक हो गया अगर मैं बोलूं बुक्स तो बुक्स तो कॉमन हो गया लेकिन अगर मैं बोलूं गीता कुरान बाइबल तो स्पेसिफिक हो गया बॉय तो ये कॉमन ना हो गया अगर मैं बोलूं कृष्णा तो ये स्पेसिफिक हो गया राइट सिटी तो ये तो सिटी शहर कोई भी हो सकता है लेकिन जब मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली सो दैट कॉल्स एज कॉमन नाउन राइट Moving on, let me tell you a basic difference between proper noun and common noun. Like if I say, I live in a city, I live in a city. So it's not clear in which city do I live. तो city तो कोई भी हो सकती है तो जब मैंने सिटी वर्ड यूज किया तो इट मीन्स मैंने कॉमन नाउन यूज किया लेकिन जब मैं बोलता हूं आई लिव इन दिल्ली राइट सो दिल्ली इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस
So Delhi becomes a proper noun. Similar, I don't remember where I parked my car. Car could be many types. But when I say I drive Centro, so Centro is a specific name of that car. तो जब मैंने कार वर्ड यूज किया तो वो क्या था, कॉमन नाउन था. लेकिन कौन सी कार थी वो, सेंट्रो. सो सेंट्रो इज अ स्पेसिफिक नेम. Moving on, third type, collective noun. So collective shows a collection. Collective shows a group of person, place, or thing, right? Collective noun shows collection of something, collection of person, group, right? So that could be called as collective noun. So my dear student, we have some examples like team, jury, committee, army, nation. These are the examples of collective noun. And beyond that, like a bunch of keys, a gang of robbers, a colony of ants, a wavy of young girls. So these are also examples of collective nouns, right? Now moving on, material noun. So material nouns are names of materials or substance of out of which things are made. If I just brief you, eatables, solid form, liquid form, all these things come under the category of material noun. If I just say gold, gold is a metal, iron, cotton, cheese, okay. If I just say water, juice, okay. So these all are the category of material noun. Moving on, abstract noun. Abstract noun, something that can't be sensed by our five senses. It means if I just say, my dear student, abstract noun, the type of noun which can be felt only. We cannot touch it, we cannot see it, we can feel it only. That could be called as abstract noun. So generally, abstract noun refer to a feeling, idea, or quality. That could be called as abstract noun. अगर मैं बोलता हूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, राइट? सो कैन यू शो मी ऑनेस्टी? ईमानदारी को दिखा सकते हो आप? नहीं दिखा सकते हो, बिकॉज इट कैन बी फेल्ट डीप इनसाइड योर हार्ट. सिमिलर, यूथ, क्वालिटी, विजडम, हैप्पीनेस, एंगर, राइट? मैं कहता हूं एंगर दिखाओ अपना. एंगर can be felt only, right? Knowledge. If I just say knowledge, show me knowledge. It's possible to show your knowledge? No. Knowledge is something which can be felt only. So these are the examples of abstract noun. So my dear student, we have studied 5 types of nouns so far. Let me repeat one more time. Noun, what does it mean? Noun is a name of place, thing, or person. So that is called as noun. Noun can be classified into 5 categories. Noun को 5 parts में हम generally बांट सकते हैं. First type is proper noun, जो कि एक specific name को refer करता है. Common noun हम बोल सकते हैं कोई भी common चीज, उसको हम क्या बोल सकते हैं, common noun की category में डाल सकते हैं. Then collective, collective किसी को show करता है जब आप एक group की या collection की बात करते हैं. Then we have material noun. मटेरियल नाउन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, या आप मेटल या नॉन मेटल या लिक्विड फॉर्म या ईटेबल्स, इन चीजों की जब बातें करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन. एंड वन मोर टाइप विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब कोई आप आइडिया, कोई फीलिंग या क्वालिटी को बताते हो विच कैन बी फेल्ट ओनली, जिसको आप से महसूस कर सकते हो, दैट कुड बी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो दिस इज so far. Now let's move on with the rules. So my dear student, I'm going to teach you around 10 or 11 rules based on noun errors. So now if you look at this sentence, my dear student, rule number 1 says, देखिए please rule number 1 को ध्यान से देखना है. देखिए rule number 1 says when you connect two noun with preposition, जब आप दो नाउन को preposition के साथ कनेक्ट करते हो. इफ यू लुक एट द सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर इज अ preposition, right? And before the preposition and after the preposition, if both nouns are same,
इन शॉर्ट, प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद वाला अगर नाउन सेम होता है, if both nouns are same, in that case first thing you need to understand कि दोनों के दोनों नाउन क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए. लेकिन इफ यू लुक एट द सेंटेंस किंगडम्स, यहां पे भी मैंने किंगडम्स ही लिखा हुआ है, किंगडम्स आफ्टर किंगडम्स, बट रूल सेज if before the preposition and after the preposition both nouns are same, they should be singular. तो पहले रूल तो ये बोलते हैं कि वो सिंगुलर होना चाहिए. तो किंगडम्स की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए, किंगडम होना चाहिए. करेक्ट सेंटेंस में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, किंगडम होना चाहिए, राइट. सिमिलर यहाँ पे भी किंगडम होना चाहिए. सो now, before the preposition and after the preposition, if both nouns are same, they should be singular. पहली बात तो ये, right? Number two, तो उनके साथ जो verb use होगी वो भी singular ही use होगी. So instead of saying were, it should be was. Was is the correct answer. The correct sentence is kingdom after kingdom was conquered by the mighty Alexander. So this is the correct answer. Similar next sentence is there, doors to doors. To is a preposition, लेकिन तो ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने यहाँ वर्क किया था, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था, was is the correct answer. Clear? Moving on with the third example, rows upon rows. यहाँ पे भी मैंने वही रूल अप्लाई किया है, सेम, rows upon rows. Upon एक preposition है, rows and rows, right? So before the preposition and after the preposition, same noun given, they should be singular. तो यहाँ पे मैंने row upon row and verbs should be singular also. So therefore the correct answer is row upon row was painted by the farmer or painter. So this is rule number 1. Now moving on, rule number 2, my dear student, same rule, right? When you connect two nouns with preposition, but before the preposition and after the preposition both nouns are different, both nouns are different, in that case we have to use our verb according to the first subject, according to the first noun which is used before the preposition. Now please try and understand. मैंने बोला है कि मान लो अगर प्रेपोजिशन के साथ आप दो नाउन को कनेक्ट करते हो लेकिन वो दोनों नाउन डिफरेंट है, तो इस कैटेगरी में, इस कंडीशन में जो फर्स्ट नाउन होता है जो कि प्रेपोजिशन से पहले यूज होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज होती है. इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट, द ऑनेस्टी ऑफ दीज बॉयज आर नॉन वर्ल्ड वाइड. दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है. ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, एंड बॉयज, बॉयज हो गया प्लूरल नाउन हो गया आपका, राइट. बट रूल सेज क्योंकि ऑफ से पहले ऑनेस्टी है, ऑफ के बाद बॉयज है, इन दिस कंडीशन we have to use verb according to the noun used before the preposition, जो कि honesty है. Honesty is an abstract noun, and my dear student, please try and understand abstract noun and material noun, they remain uncountable. An uncountable noun always takes singular verb and they remain singular. So uncountable noun जो भी होंगे, material noun हो गया, कलेक्ट material noun हो गया, abstract noun हो गया, तो ये हमेशा uncountable noun होते हैं और uncountable noun हमेशा ही singular होते हैं. If you look at this correct sentence को, honesty, the honesty of these boys is known worldwide. So क्योंकि honesty abstract noun है which is uncountable and uncountable remains singular, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको singular verb use किया है. Move on with the next example. The boys kept the books kept in drawer is mine. Now my dear student, the books kept in drawer in mine. अगर आप इस ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ बुक्स यूज किया है, बुक्स जो कि प्लूरल है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर आर इज द करेक्ट आंसर. देखें तो मीन्स
जब प्रेपोजिशन से पहले एंड प्रेपोजिशन के बाद दोनों नाउन्स डिफरेंट होते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के हिसाब से यूज करते हैं. Look at next example. The questions of this particular chapter is extremely difficult. लेकिन यहाँ पर of से पहले मैंने यूज किया the questions, जो कि प्लूरल है और इस वजह से वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल ही आनी चाहिए. तो what is the correct answer? The questions of this particular chapter are extremely difficult. So my dear student, I hope these two rules are clear to you. Now let me repeat one more time. देखिए, ध्यान से देखना है. When you connect two nouns with preposition, before the preposition and after the prepositions, if both nouns are same, they should be singular and they take singular verb. Number 2 rule says, again you connect two nouns with preposition. Before the preposition and after the preposition, both nouns are different. In that case, we have to use verb according to the first noun used in that sentence. So this is rule number 2. Now rule number 3, my dear student, it's interesting. Yes. So my dear student, collective noun. Most of the errors come from collective noun. Because collective noun can be treated as a singular noun, collective noun can be treated as a plural noun. Now, let me tell you, my dear student, how will you differentiate it? In short, if I tell you, when you feel collective noun as a one unit, so that time it is taken as singular noun. When collective noun seems divided, that time it is taken as plural noun. In short, जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह दिखाई पड़ता है, एक यूनिट की तरह काम करता है, तो उस टाइम उसको कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर नाउन मानते हैं. और जब कलेक्टिव नाउन आपका डिवाइडेड दिखाई पड़ता है, एक मत नहीं होता है, दैट टाइम वी टेक कलेक्टिव नाउन एज अ प्लूरल नाउन. नाउ इफ यू लुक एट द सेंटेंस, माय डियर स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स: बोर्ड, टीम, जूरी, these are the examples of collective noun. लेकिन जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, बोर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट कुड बी यूज्ड बोर्ड, राइट. सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं. देखिए फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर कि द बोर्ड हैव टेकन देयर डिसीजन दैट ईशांत शर्मा शुड बी ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट मैच. It means suppose there are 5 members and they have taken a collective decision. अब उन 5 लोगों ने collective decision लिया. अब collective decision लिया तो it shows that they all are united. And as I told you, when collective noun seems united, it should be taken as singular noun and we have to use singular verb. Now if you look at the sentence, my dear student, अब मैंने यहाँ पर एरर क्या डाला, हैव टेकन डाला, लेकिन ये तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, तो इस वजह से यहाँ पर आना चाहिए हैज. Because in this particular sentence, we have used collective noun as a singular noun. Moving on with the same sentence. Now, if you look at this sentence, my dear student, what possessive case we have used over here? There, which is incorrect. Why so? My dear student, one rule says that, एक रूल ये भी है ग्रामर के अंदर कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए और उसके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन या पजेसिव जो भी केस है वो भी सिंगुलर ही होगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी एंड उसके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन या पजेसिव केस जो भी है वो भी प्लूरल होगा. And in general, my dear student, when collective noun is united and works as a unit, that time it is taken as a neuter gender. और उसको एक न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है. इस वजह से माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये यूनाइटेड था तो यहाँ पर देयर नहीं आ सकता, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है जो कि यूनाइटेड है, सिंगुलर है, और इस वजह से यहाँ पर आपका इट ही करेक्ट आंसर होगा, देयर नहीं होगा. सो जनरली collective noun is taken as singular noun, right? Now moving on with the next example.
The society have decided to postpone their meetings after taking an unanimous decision. Society means a group of person living at one particular place. That could be called as society. So now my dear student, in this particular sentence, if you look at society ने मिलकर एक डिसीजन लिया है, एक यूनानिमस मतलब कलेक्टिव डिसीजन लिया है क्या, कि उनका कोई मीटिंग था, उसको उनको क्या करना है, पोस्टपोन करना है. तो यहाँ पर आप सेंटेंस को दोबारा से देखिए, मैंने सोसाइटी के बाद हैव लगाया है, जो कि इनकरेक्ट है, बल्कि होना क्या चाहिए था, द सोसाइटी हैज. द सोसाइटी हैज इज द करेक्ट आंसर. द सोसाइटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन. फिर वही रूल आ गया, देयर मीटिंग की बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए, इट्स मीटिंग, बिकॉज योर कलेक्टिव नाउन इज यूनाइटेड एंड that time we use singular verb, and if we have to use any pronoun or possessive case, in that case, in that particular sentence, it should be used according to the noun. तो noun अगर आपका singular है तो आपका possessive case भी singular ही आना चाहिए, तो its meeting होगा, ना कि their meeting होगा. So I hope my dear student, rule number 3 is clear to you, right? Moving on, rule number 4. Now, same rule, my dear student, collective noun. But as I told you, when collective noun seems divided, okay, so that time collective noun is taken as plural noun. और उस वक्त उसी collective noun को plural लिया जाता है. जैसे अगर आप sentence देखो, panel, panel means a group of person. अब ध्यान से देखो, the panel was divided in its opinion. अब देखो, panel was divided, panel was divided, divided है भाई, प्लूरल आना चाहिए. द पैनल वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. तो पैनल यहाँ पर यूनाइटेड नहीं है बल्कि डिवाइडेड है, तो इस वजह से यहाँ पर पैनल वर होना चाहिए, ना कि वॉज. तो फर्स्ट तो यहाँ पर यही एरर है, द पैनल वर डिवाइडेड. और जब आपका प्लूरल, जब आपका नाउन प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल है, तो उसके साथ यूज होने वाला पजेसिव केस भी प्लूरल ही होना चाहिए. सो देयरफॉर व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? The panel was divided in their opinion in the mining scam. Scam means a kind of ghotala, right? Now moving on, my dear student, next example, the team was disputing over the captaincy. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, टीम, अब टीम में डिस्प्यूट चल रहा है किसको लेकर, कैप्टनसी को लेकर. तो टीम हो गए यहाँ पर प्लूरल, तो यहाँ पर आना चाहिए वर. एंड ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज योर कलेक्टिव नाउन seems divided in this case. So in short, if I tell you, my dear student, collective noun can be used as a singular noun as well as plural noun also, but depends. अगर आपका collective noun united है, एक यूनिट की तरह काम करता है, तो उसको हम singular noun मानते हैं. और अगर आपका collective noun डिवाइडेड है, तो उसको हम प्लूरल नाउन मान के चलते हैं, राइट? अगर सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और उसके साथ यूज होने वाला जो भी पजेसिव केस है उसमें भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे. अगर आपका डिवाइडेड है तो नाउन को प्लूरल माना जाता है, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, और उसके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन या पजेसिव केस प्लूरल ही होगा. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल. I hope, my dear student, you are understanding the concept. It's a very, very interesting concept, and most of the errors come on this pattern only. Yes. तो my dear student, अब कुछ collective nouns normally इस टाइप से बोले जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जैसे अगर मैं बात करता हूं ज्यूरी, पैनल, सोसाइटी, ऑडियंस, ये तो एक ग्रुप को शो कर रहे हैं. लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन इस तरीके से भी बोले जाते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ स्कूल ऑफ फिश, अ बंच ऑफ कीज, अ वेवी ऑफ यंग गर्ल्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ए कॉलोनी ऑफ आंट्स. तो इस तरह के भी कलेक्टिव नाउन्स बोले जाते हैं. जब इस तरह के कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखना, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा ही इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह ही बोले जाते हैं. तो इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज किया जाता है, इनको सिंगुलर नाउन ही माना जाता है, और सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है. इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट, अ वेवी ऑफ यंग गर्ल्स, वेवी मीन्स ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, यंग लड़कियों के ग्रुप को हम वेवी बोल सकते हैं. अ वेवी ऑफ यंग गर्ल्स होल्ड अ कैंडल मार्च द अनलकी ब्रेव हार्ट निभा, शी इज डिटरमाइंड टू गेट
निर्भया जस्टिस। अब देखिए इस सेंटेंस को देखें, अ वेवी ऑफ यंग गर्ल्स। अब इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो अ वेवी ऑफ यंग गर्ल्स जो कि एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया गया है, और अगर सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे तो सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं जब कलेक्टिव नाउन को, तो वहां पर हम उसको न्यूट्रल जेंडर मान के चलते हैं, और न्यूट्रल जेंडर को डिफाइन करने के लिए हम ही शी वगैरह यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम इट के साथ उसको डिफाइन करते हैं। तो अभी देखो, ए वेवी ऑफ यंग गर्ल्स, शी इज डिटरमाइंड। अब यहाँ पे ए वेवी ऑफ यंग गर्ल्स को शी से डिटरमाइन किया, शी से बता रहे हैं, विच इज इनकरेक्ट। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे इट होना चाहिए था, because a wavy of young girls refers to a group of young girls which is used as a neuter gender, and neuter gender is defined with it। इसको it के साथ डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया ये, और यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ना it। Similar, my dear student, a gang of robbers were booked while executing their ill practices। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, a gang of robbers were booked while executing their ill practice। अब a gang of robbers क्या है, a group of person हो गया, group of robbers हो गया, जो कि सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा तो इसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी वॉज आनी चाहिए, जो कि करेक्ट है। और अगर हम ऑब्वियस सी बात करते हैं, अगर हम इसके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन या फिर हम पॉजेसिव केस यूज करेंगे तो वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर इट्स आ गया। सो दिस इज इन केस ऑफ कलेक्टिव नाउन। Moving on with next example, my dear student, rule number 6, 7, and 8. Actually, let me tell you what do you mean by rule number 6, 7, and 8. So, my dear student, rule number 6 and rule number 8, actually, in case of a material noun or abstract noun, जब कभी आप मेटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हो, मेटेरियल नाउन कौन, जो किसी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ईटेबल्स होता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज मेटेरियल नाउन। But when we talk about abstract noun is a noun which can be felt, you cannot see it, you cannot touch it। तो वो हो गए जो कि आपके आइडियाज को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी क्वालिटी को बताते हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, when we talk about material noun, rule number 6 and rule number 8, and abstract noun, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। सो इन दैट केस वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल, हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर रूल नंबर 6 की तरफ देखें तो मैंने यहाँ पे आयरन्स यूज किया है। Irons are the most useful of all the metals, which is incorrect। होना क्या चाहिए, आयन, ये होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मेटेरियल नाउन है जो क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए वजह से आयन्स नहीं होगा बल्कि आयन होगा। सिमिलर अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं, एंगर्स नहीं हो सकता भाई, एंगर्स तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ग्रीड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इनके साथ एस या एस नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट मेक इट प्लूरल। Anger is a feeling. Greed is also feeling, which is abstract noun. And abstract noun remains singular. तो इस वजह से यहाँ पर भी आपका anger और greed ही होना चाहिए, ना कि angers and greeds, which is also incorrect, right? Now rule number 7 says, my dear student, कि material noun की अगर मैं बात करता हूँ या इसके साथ साथ मैं यूज कर लेता हूँ abstract noun भी। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप मेटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो इन जनरल केस वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरल केस में हम मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस देखो, द आयरन इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है, आयरन क्या है, एक मेटेरियल नाउन है, और मेटेरियल नाउन जो होता है वो आर्टिकल नहीं लेता है, इसी वजह से यहां पर करेक्ट हो गया आयरन ओनली, दो नहीं आएगा। सिमिलर अगर मैं बात करूं, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
तो ऑनेस्टी तो भाई आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेकर आता है, तो इस वजह से द ऑनेस्टी नहीं बल्कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर. I hope I'm giving you something good for you, my dear student, and I really believe that you are enjoying the session. Okay, moving on with the next rule, which is rule number 9. Now, my dear student, rule number 9 says actually one unit, two parts. नॉर्मली क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी आइटम्स होती है जो होता तो एक है लेकिन उसके पार्ट्स टू होते हैं. तो उस तरह के जो केसेस होंगे वो आपके क्या होंगे, उस तरह के नाउन्स को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं. जैसे अगर आप बात करते हैं, जीन नहीं होता, जीन्स होता है. ब्रीचेस का भी, ब्रीचेस क्या होता है, अ टाइप ऑफ ट्राउजर्स कह सकते हैं. ड्रॉर भी क्या होता है, एक टाइप ऑफ ट्राउजर्स ही होता है. ट्राउजर्स तो ट्राउजर्स ही होता है. सीजर्स, ट्वीजर्स, ट्वीजर्स होता है चुटकी टाइप कह सकते हो. प्लायर्स भी, और ट्वीजर्स अ शॉर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ फैब्रिक, अ काइंड ऑफ क्लॉथ, काइंड ऑफ ट्राउजर्स कह सकते हो आप. प्लायर्स एंड पिंसल्स, ये आपका चुटकी टाइप की एक चीज होती है जिससे कुछ चीज को उठाया जाता है. पिंसल्स भी वही होता है. ग्लासेस, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स. तो ये वो चीजें हैं जो यूनिट, जो होता तो आर्टिकल एक है, चीज तो एक होती है, लेकिन उसके पार्ट्स क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं. तो जनरली जब उसके टू पार्ट्स होते हैं तो उसको प्लूरल ही ट्रीट किया जाएगा, ना कि उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा. और सेकंड, माय डियर स्टूडेंट, इनके साथ हमेशा ही एस लगता है, इनको प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है. सीजर कभी भी नहीं होगा, सीजर्स ही होगा. गोगल नहीं होगा, गोगल्स ही होगा. ग्लास नहीं होगा, ग्लासेस ही होगा. राइट. सो इफ यू लुक एट द सेंटेंस, माय डियर स्टूडेंट, वेयर हैव यू केप्ट माय सीजर. अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे यूज किया माय सीजर, या माय सीजर नहीं बल्कि सीजर्स ही होना चाहिए. सी, सीजर्स. और इनको हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाएगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज की जाएगी. नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रूल नंबर 9. Now, rule number 10, it's very, very interesting. It's a very interesting rule. If you look at rule number 10, when a noun takes the place of an adjective, it should be singular. देखिए बेटा क्या होता है इस रूल में, जब आपका कोई नाउन किसके प्लेस पे आता है, एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, तो उसको हमेशा सिंगुलर ही रखना पड़ेगा. जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैंने बात की है स्पेशलिस्ट इन आइज. स्पेशलिस्ट हो गया आपका नाउन के प्लेस पे हो गया, लेकिन आइज हालांकि नाउन होता है, लेकिन अब यहाँ पे इसका प्लेस क्या है, एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गया है. तो इसलिए एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गया है, तो ये आइज ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए. आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो जो कि प्लूरल नहीं हो सकता है. सिमिलर माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल में भी फैक्ट्री हो गया आपका नाउन, और नाउन से आगे वाला जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव का होता है. केमिकल्स, अब एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गए, तो इसलिए यहाँ पर केमिकल्स ना होकर करेक्ट क्या होना चाहिए, केमिकल फैक्ट्री होना चाहिए. राइट. सो दिस इज रूल नंबर 10. I hope, my dear student, you are enjoying this session and you are learning these all rules. And let's move on with the last rule, which is very interesting. Give me 1 second. So this is rule number 11. So my dear student, rule number 11 says a compound noun with hyphen. मतलब जब कभी एक कंपाउंड नाउन होता है जिसमें हम हाइफन को यूज करते हैं, तो वो हमेशा हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा ही सिंगुलर होना चाहिए. आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें. अ 6 miles वॉक. अब यहाँ पे अ 6 miles हाइफन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा ही सिंगुलर होता है. देखो आप यहाँ पे देखो, अ 6 mile, यहाँ मैंने माइल्स किया जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि रूल ये बोलता है कि अगर कंपाउंड नाउन है और हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा पर सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वो एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है. सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अ 5 years प्लान. अब यहाँ पे 5 years ना होकर यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था अ 5-year प्लान होना चाहिए था आपका. क्यों? क्योंकि अब जो ईयर है वो आपके एडजेक्टिव के प्लेस पे है. प्लान तो हो गया आपका नाउन, और हालांकि ये पूरा अ 5-year प्लान है तो एक कंपाउंड नाउन,
लेकिन जो ईयर का प्लेस है वो एडजेक्टिव का प्लेस है, और इस वजह से एडजेक्टिव हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। तो इस वजह से आपको ईयर्स ना यूज करके ईयर यूज करना पड़ेगा। रूल सेज कि हाइफन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए। सिमिलर माय डियर स्टूडेंट, 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार्स होटल्स। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार्स ना होकर ये होना चाहिए था 5 स्टार होटल। So which is correct. Moving on with the next example, 5,000 rupees notes. तो 1000 के बाद हाइफन है, उसके बाद रुपीज यूज किया गया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, रुपी। सो दिस इज करेक्ट, 5,000 rupee notes. So my dear student, I really hope that you have understood these all 11 rules. So thank you very much and have a nice day, my dear student. Give me 1 second only. Give me 1 minute only. Yes. So, my dear student, I tried my level best to just make you understand this topic and try to simplify it for you. So, I really believe that you have understood this topic. In case you have any trouble in understanding of this particular topic, so feel free to ask me. Tomorrow, I will continue the same and I will try to teach you something new based on noun and its error. So thank you very much. God bless you. Stay happy and blessed and enjoy your day. See you tomorrow. Thank you. God bless you all.